वन रूम किचन से बंगले तक आ गए हो अगर, और आपकी गाड़ी बड़ी हो गई है, आप अच्छा पीआर अफोर्ड कर पा रहे हो, मेकअप हेयर आर्टिस्ट अफोर्ड कर पा रहे हो, तो आपको क्या तकलीफ है? अगर गैंग्स ऑफ वासीपुर का कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हो रहा है तो आई मेड श्योर दैट इफ आई वेंट फॉर एन इवेंट लाइक और एन अवार्ड that I would dress really hot and sexy, so people would know what I really look like. What I like about his set is that there's a lot of chaos, but when he comes, there's like a silent feeling कि कोई आ गया है और सब लोग अपना काम में लग जाते हैं. 2-3 ऐसे ऑफर्स आए थे कि oh you're young and sexy, why don't you do this sex comedy? And I was like no, I don't want to do a sex comedy in which I'm selling bananas and saying kele le lo or something. That's not me. Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood. I'm in conversation with someone who is so talented, has given us amazing cinema over the years. Joining me in a conversation is Richa Chadha. So nice to have you. Thanks Aina, thanks for having me. And आज हम पहली बार अच्छे से बात कर रहे हैं. Last time मैं आपसे मिली थी, that was during फुकरे with पुलकित and वरुण. So I'm glad क्योंकि आज काफ़ी बात होगी आपके बारे में. जी. I want to start off asking that जब आपका एक्टर बनने का एक सपना था और आप मुंबई आए थे, मुंबई जैसे शहर में जब लोग कहीं और से आ रहे काफ़ी इंटिमिडेट हो जाते हैं, देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग इन द सिटी. क्या सर्वाइवल आपके लिए तब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था? नहीं, एक्चुअली मैं आई गॉट वेरी लकी. आई वॉज डूइंग सम थिएटर विद बैरी जॉन और उसके 2-3 महीने वाइल वर्किंग ऑन अ प्ले मुझे 2-3 ऑडिशंस के कॉल आए और मैं ऑलमोस्ट हर जगह शॉर्ट लिस्ट हो गई थी और फिर फाइनली मुझे वो लकी में ब्रेक भी मिल गया. सो लाइक दे से दैट स्ट्रगल इज़ अ लॉन्ग पीरियड वगैरह, वैसा मेरे साथ नहीं हुआ. Of course, after doing my first film, I had a bit of a wait to do my second. But that's normal, and I think अगर आपको कुछ करना है, वो ठान के आप अपना शहर छोड़ के यहाँ आते हो, तो you should be prepared for all eventualities. Also, family had supported me, so ऐसा नहीं था कि खाने को नहीं था या वो जो रेलवे स्टेशन पे मैं सो रही थी. I have no such stories. I was renting out with another girl that I was sharing the flat with. And I was not a Rais at all. I was quite broke, but I was happy. I was managing. You were enjoying. Yeah. But मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं and I've seen the comments also. लोग अक्सर ये कहते हैं that she's so relatable and she's so candid and ऐसा लगता नहीं कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बैठी है, because एक बहुत ही अपनापन रखता है जब आपसे लोग बात करते हैं. Why do you think that's still there after so many years? I think that who you are as a person should not change with success or with failure. Sometimes it changes more with failure actually. Oh. Yeah, I think people become bitter. थोड़ा सा उनको लगता है कि मैं कुछ हासिल नहीं कर पाया या कर पाई. धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेट होते हैं. Then it starts to show, like in their interviews, they'll attack somebody else or जिसका ना जान ना पहचान कोई, मतलब there's no need. So I always feel कि with success everyone should become better because God has given you better life. आप वन रूम किचन से बंगले तक आ गए हो अगर, और आपकी गाड़ी बड़ी हो गई है, आप अच्छा पीआर अफोर्ड कर पा रहे हो, मेकअप हेयर आर्टिस्ट अफोर्ड कर पा रहे हो, तो आपको क्या तकलीफ है? आप just do your job and don't be so frustrated. So I feel like success should only make people better human beings. Absolutely. Not worse. पर आपको लगता है failure, like you said, makes people a little bitter, पर ये इंडस्ट्री में थोड़ा bitter रहना ज़रूरी है? क्योंकि मैंने काफ़ी एक्टर्स से जब बात की है, often they have said कि हम बहुत ही innocently बोल देते थे कि मुझे ये स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लगी कोई डायरेक्टर को, या ना बोल देते थे तो लोग बहुत ऑफेंड हो जाते थे. And they were like, we didn't know कि बोलना है कि यार ये डेट्स नहीं हैं. We didn't know how to be diplomatic. See, bitterness is about like not being happy with someone else's success also. कोई और कुछ अच्छा कर रहा है, किसी की शादी हो गई, कोई पैसे कमा रहा है, किसी को अवार्ड मिल गया, तो आप अंदर से जल भून जा रहे हो. दैट इज़ बिटरनेस. बट दिस इज़ अबाउट ऑनेस्टी. इफ़ यू डोंट लाइक अ स्क्रिप्ट, अगर रैपो है आपका डायरेक्टर के साथ, तो आप बोल सकते हो कि इस वाली में मज़ा नहीं आया. वरना देर आर अदर वेज लाइक डेट्स नहीं है वगैरह, वो इट्स जस्ट अ स्ट्रैटेजी, ऐसा कुछ नहीं है वो, उसमें बिटरनेस नहीं. I think the word you're looking for is honesty. Honesty, yeah.
बट आपके साथ ऐसा हुआ है where you were honest and it didn't really work out for you? Not really. It's always been. The best policy for me actually. I think अपनी बात अपना मुद्दा प्यार से आगे रखते हो तो कोई माइंड नहीं करता. आप ये भी तो बोल सकते हो कि मैं बम्बई अपना करियर बनाने के लिए आई हूँ, आपकी स्क्रिप्ट को सुधारने के लिए नहीं आई हूँ. उनको समझ में आ जाएगा प्यार से if you just say it. बट यू नो आपने काफ़ी कहा है कि स्टार्टिंग में आपके रोल्स इतने अच्छे से आप निभाते थे कि आप स्टीरियोटाइप हो जाते थे, आपको फिर ऐसे ही रोल्स आते हैं, और ये काफ़ी लोगों के साथ होता है इंडस्ट्री में. उस दौरान कभी कोई फ्रस्ट्रेशन आई कि यार इसको तोड़ना पड़ेगा, या आई हैव टू डू समथिंग एंड डू कम्प्लीटली डिफरेंट टू प्रूव माई सेल्फ? नहीं, इट वॉज जस्ट दैट आई वुड जस्ट लुक एट हाउ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग. लाइक अगर गैंग्स ऑफ वासीपुर का कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हो रहा है तो आई मेड श्योर दैट इफ आई वेंट फॉर एन इवेंट लाइक और एन अवार्ड दैट आई वुड ड्रेस रियली हॉट एंड सेक्सी सो पीपल वुड नो व्हाट आई रियली लुक लाइक एंड नॉट लाइक अ मिडिल एज्ड विलेज वुमन. तो दोज आर द स्ट्रैटेजीज आई अडॉप्टेड. रही बात स्टीरियोटाइपिंग की, तो एक हद तक सबके साथ होती है टिल अ पॉइंट एंड देन it just breaks. कोई ना कोई आपको मिल ही जाता है who understands who you are. Like I never thought after 10 plus years like now I'll be doing one big song with Bhansali Saab, Yeah. So that all, it just happens. But your rishta with Bhansali sir is quite, it's been there over the years. Yeah. And you worked with him before. But before I head there, कभी ऐसा हुआ है कि you wanted to really play a role और a genre पर वो आपके पास आज तक कभी आया नहीं है? काफ़ी बार हुआ है. काफ़ी बार ऐसे भी हुआ है कि आई एम लाइक शॉर्ट लिस्टेड और मैं आई नो दैट आई एम द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब बट सम हाउ इट्स नॉट कम टू मी. ऐसा हुआ है काफ़ी बार, बट इट्स ओके. आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द. व्हाट डू यू डू इफ समवन सेज सॉरी इट डिडंट वर्क आउट? यू व्हाट डू यू डू? लाइक यू आर नॉट गोना से कि नहीं मुझे ले लो, या आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त कि मैं जाके ऑफिस में बैठ जाऊंगी. मैं नहीं करती ये सब. बट डू यू फील, ऑफ कोर्स गैंग्स हैज़ गिवन यू सो मच ऑफ लव, बट आई फील कहीं ना कहीं फुकरे हैज़ बिन द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ. डू यू ऑल्सो अग्री? बिकॉज यू फाउंड लव देयर, यू फाउंड अ लॉट ऑफ लव इवन फॉर योर वर्क. एक करियर में ऑल्सो देयर वॉज अ स्पाइक दैट हैपेंड. आई थिंक वो डेफिनेटली इट हेल्प्स बिकॉज एक कमर्शियल फिल्म जो बहुत लोगों तक पहुँचे, खासकर की कॉमेडी जिसको बच्चे फैमिली ऑडियंसेस देखें, उससे बहुत फ़र्क तो पड़ता है. एंड आई एम लकी आई मेट अली. आई न्यू अली पहले से, बट आई गेट टू हैंग आउट विद हिम मोस्टली ऑन द फुकरे सेट. वो सब अच्छा था. बट मोर देन दैट आई थिंक एक्सेल एंटरटेनमेंट प्लेड अ बिग रोल इन माई करियर. लाइक फुकरे, ऑल 3 पार्ट्स, देन इनसाइड एज. बीच में मैंने उनके लिए एक और फिल्म की थी 3 स्टोरीज करके. It was a beautiful film. So, they are a really good company to work with. Yeah. So that also makes a difference. Who you associated with, which kind of banners are approaching you. Do you now look back at the chase phase जो आपके और अली के बीच में फुकरे के टाइम हुआ था? Like how were those days and who approached who first? No Was it like chasing. that? No. We knew each other from theatre days. Like हमारे friend circle में पृथ्वी का जो gang था, उसमें बहुत सारे लोग फ्रेंड्स कॉमन थे. बट एज सच none of us chased each other. We were friends for a long time, like almost a year and a half before we started dating. Yeah. So when it happened, it was very organic. You know, वो फेज में ऐसा होता है ना, कभी आप दोस्त होते हो पर आपके जो बाहर वाले दोस्त है वो देख लेते कि ये तो दोस्ती नहीं है. So वरुण और मंजोत ever like I don't think ये दोस्ती है? कभी वैसे भी नहीं. First of all, they're big dhakkans when it comes to girls. At least at that time they were. I think only Pulkit was little bit smart, like thoda shana. He was figuring out कि कुछ हो रहा है शायद. But उन लोगों को तो not Varun, Manjot and all तो had no clue at all. Oh God. But you know the last time also जब मैंने खुफिया के टाइम पे अली से बात की थी, मैंने उनसे ये पूछा था कि you're doing so much Hollywood work but he doesn't push himself. He's not very loud that I'm doing this. Have you ever tried to tell him that go a little aggressive with your PR or do this or you know? I think we are both not those people. Yeah, like we both we want to do PR. We want to definitely talk about the good work we do in the press and have social media presence. वो सब है, but एक point के बाद it just gets a little awkward. I feel. See, work speaks for itself. Like True. अभी मैं आपको बोलूँ या ना बोलूँ, अब अली
अगर इंडियन एक्टर्स इन हॉलीवुड में बोलूँगी तो आपके दिमाग में अली विल बी वन ऑफ द टॉप फ्यू नेम्स दैट कम्स, यू नो, अदर देन अदर एक्टर्स लाइक से आदर्श गौरव और द लेट ग्रेट इरफान साहब, यू नो, ही इज़ राइट अप देयर. सो हम पुश करें या ना करें तो वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ ना. अगर अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप ये भी बोल सकते हो कि इतने ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी मीडिया कर लो, और ये नेवर हैव आई एवर खेल लो मेरे साथ आके रोज़. बट व्हेन यू थिंक ऑफ वर्सेटाइल एक्टर्स एंड यू थिंक ऑफ द फिल्मोग्राफी, तो आपको पता है, तो वो बिल्कुल, या इट स्टैंड्स आउट इन इटसेल्फ. बट या बिकॉज कहते हैं आज ज़रूरी हो गया है वो भी करना. सो इट वाज जस्ट अ थॉट एंड आई टोल्ड अली, और अली ने भी, ही वाज लाइक आई डोंट नो यार, आई थिंक आई शुड डू दिस, आई थिंक आई शुड पुश फॉर इट. बट no, I push him as much as is comfortable for him. Yeah, absolutely. I can't change his personality. He's a shy boy. Like, you know, I can't change that. He's a little awkward. So I like him like that. तो मुझे मन भी नहीं करता कि मैं क्यों उसकी मासूमियत को ख़त्म करूँ. No, absolutely. हाँ. How did you all think of producing together? Because we are such good friends. Actually, like जावेद साहब always says this about शबाना आज़मी कि हमारी दोस्ती इतनी पक्की है कि शादी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई. So it's like that. We are very good friends. And हम लोगों के बहुत सारे ऐसे interest हैं which are in common. Like, you know, like I said, theatre or cinema or music or literature. तो ये जो चीज़ें हैं मुझे उनके साथ बहुत डिस्कस करने में मज़ा आता है. और हम लोग हमेशा सोचते थे कि इफ़ वी मेक समथिंग, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी विल इट बी इंटरनेशनल, विल इट बी वेरी कमर्शियल इंडियन. तो हमें पता है हमें क्या नहीं करना, उसमें चीज़ें बहुत सारी कॉमन है. और जो करना है साथ में, वी डिस्कस एंड वी अराइव एट दैट. तो इट्स ईजी टू प्रोड्यूस विद हिम एक्चुअली. बट यू नो, इट मेक्स मी क्यूरियस, आप दोनों इस इंडस्ट्री में हो, दोनों एक्टर्स हो, दोनों ने फिल्में साथ में की है. एक बहुत ही एक तरह का यूर अ क्रिएटिव पर्सन, सो इज ही, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आ जाता है. आता है, बिल्कुल आता है. हाउ डू यू ऑल कम टू अ मिडिल ग्राउंड तभी, स्पेशली बिकॉज यू ऑल हैव अ पर्सनल इक्वेशन? आई मीन वी डोंट फर्स्ट, तो डिफरेंस ऑफ क्रिएटिव ओपिनियन इज अ हेल्थी थिंग. या, because otherwise we'll be clones and we don't want to do that. And we don't agree on things sometimes and it's fine. Then we take opinion. अगर जैसे कोई लोगो बन रहा है तो हम उसको A लोगो पसंद आया, मुझे B लोगो पसंद आया, तो हम ये A और B में से we ask people we trust around us कि तुम भी चूज़ करके हमें थोड़ा फीडबैक दो, what is your view on this. तो ऐसे करके मैनेज हो जाता है. The idea is that you should be able to come to a resolution and you shouldn't take a difference of opinion personally. Right. Yeah. Have these two friends discussed being mom and dad and what kind of a father he is going to be and what kind of a mom, because you all have, like you said, always been friends. और ये आपने काफ़ी कहा है कि that has kept हमारी शादी intact आज तक, क्योंकि friendship बहुत है. But एक step वो आगे बढ़ रहा है in parenthood. It is nervous. It's nerve-wracking actually. Actually, nerve-wracking. Marriage is nerve-wracking. You know, making families meet from different cultures, coming together, spending that much money, inviting people. That is nerve-wracking. तो वो हो गया तो मुझे लगता है ये भी हो ही जाएगा. And we not, both of us don't want to take फालतू का stress. Yeah. कि ये मत करो, वो मत करो. We are just living our lives and taking every day as it comes. And of course we'll do whatever is best for the new creature that comes into the world. इतना complicated नहीं है. I think American notion है बहुत ज़्यादा. Americans बहुत वो complicate करते हैं चीज़ें. But you all have not like prepared anything, planned? No, we've prepared. We are like we'll book a nurse and we'll make a small nursery and वो सब ही है. Routine जो practical planning है वही कर रहे हैं. बाकी तो कुछ नहीं. बाकी I know his dates now, so we are just thinking कि अच्छा around the delivery will he be shooting in Bombay, वो सारी चीज़ें जो logistical planning है वो कर रहे हैं of course. You know, coming to Sanjay sir, I want to ask, बहुत चर्चा सुनी है that you know he is very strict on sets and his Sanjay Leela Bhansali set is extremely strict in what way? It's strict in the sense that see like sets can be noisy. Yeah. And his sets always have a lot of people because they are grand. Yeah. So you know they have a lot of setting people, a lot of art director,
Right. की टीम से बहुत लोग होते हैं, वो कैंडल, पर्दा, वो सब देख रहे होते हैं, फिर कॉस्ट्यूम से हमेशा कुछ लोग होते हैं, और वो ज्वेलरी सब कुछ देख रहे होते हैं, और लाइटिंग टीम. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल ऑन एवरेज ऑन हिज सेट्स. लाइक 100-150 पीपल इज़ नथिंग. Oh और my अगर God. एक्स्ट्राज हों तो और ज़्यादा. और ज़्यादा. एक्स्ट्राज खुद ही 100-200-300 कितने भी होते हैं. Right. तो what I like about his set is that there's a lot of chaos, but when he comes, no, there's like a silent feeling कि कोई आ गया है, और सब लोग अपना काम में लग जाते हैं. And he has a very good, he has very high standard. So what I love about him is that he has such a high standard from himself that he'll reshoot something if he doesn't like it. But he will not just say, Settle for it. हाँ, he doesn't settle. Right. For sure. You also said कि the way Sanjay Leela Bhansali pushes you as an actor, probably no one does, and you Yeah. love that about I him. love it, yeah. Yeah. In what way does he remove that side of you, which probably even you don't know? I think what happens is, say, suppose, see, you start with like Gangs of Wasipur ना, अभी आपको मैं पूछूँ कैसी फिल्म है तो आप बोलेंगे वाओ क्या कल्ट फिल्म है ये वो. तो एक इस्टेब्लिश हो गया कि वो कल्ट फिल्म है, वो बहुत अच्छी फिल्म है, वो बहुत अच्छा डायरेक्टर है, हेंस उस फिल्म में जितने एक्टर हैं सब बहुत अच्छे हैं. बट होता क्या है कि यू गो वर्क विद समवन, दे विल बी लाइक अरे आप तो कर लोगे. तो समटाइम्स आई एम स्टार्व्ड फॉर डायरेक्शन. लाइक टेल मी समथिंग, Yeah. give me something, tell me what I should do. Should I cry, should I laugh? Tell me, or tell me that you do whatever you want, we'll figure out. मतलब तो with him, no, I feel like he just gives me space to play. कि कभी कभी रोने वाले सीक्वेंस में आपको हंसी आ जाती है कि even on camera you're like, you know, it can be an ironic laugh, like you know, it can be a helpless laugh. It doesn't have to be कि रोने वाले सीन में इंसान रोता रहे. So those interpretations are fun with him. And वो पूछते हैं कि तुम्हारे दिल से क्या निकल रहा है इस वक्त, honestly तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है. तो when that happens, I think really there's magic. No, absolutely. And a lot of actors have also agreed and said this same thing. Yeah. Who have worked with him. जब मैं दिल्ली भी आई थी ट्रेलर लॉन्च देखने, वो एक रूम में एक वाइब्रेशंस हो गई थी बिकॉज यू आर सीइंग द हीरा मंडी वर्ल्ड एंड यू आर सीइंग दोज मैसिव सेट्स, द कॉस्ट्यूम्स. एज एन एक्टर ऑन सेट डज, I'm sure the sets and the whatever you're wearing, the makeup, the co-actors, the energy helps you to get into the character better. Yeah, sets and costumes definitely help. But is it more than other sets when you are on a Sanjay Leela Bhansali set? Because everything, the attention to detail is amazing. Yeah, and you feel like you're in safe hands. Yeah. That's the thing with him. Like he's gonna come and say कि liner थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इस सीन में ये वाली एक्ट्रेस महंगी लग रही है, ऐसा भी बोल देंगे वो, बिकॉज ही इज सो पर्टिकुलर. सो देन एन एक्टर कैन जस्ट डू देयर जॉब. लाइक इफ आई नो कि कोई देख रहा है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी डिलीवरी कैसी है, मैं then I can focus on just my job. Yeah. You know. Absolutely. Otherwise people are distracted. और वो ऐसे पता नहीं चलता, बट कभी कभी आप स्क्रीन में देखते हो कुछ एक्टर्स को, आपको नहीं लगता कि ये बस खड़ा है पर इसमें जान नहीं है, या इसमें वो बात नहीं आ रही, या कुछ दिल तक नहीं पहुंची बात. ऐसी वो जो कम्युनिकेशन की फीलिंग है, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स, नो. सो इफ समवन इज रियली क्राइंग, रियली लाफिंग, यू फील इट. तो वो एक है फर्क. हाँ, क्योंकि पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड, नो, कि मेरी ज्वेलरी, मेरे झुमके, मेरे लैशेस कहाँ जा रहे हैं. हाँ बिल्कुल. बट डू यू फील समटाइम्स यू कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज यू आर अ गुड एक्टर? दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई वुडंट से आई एम अ गुड एक्टर, बट अगर सामने वाले को ये लग गया गलती से तो वो फिर अपना काम छोड़ देते हैं. With Sanjay, that's not a problem ever. Good or bad, he will make sure he directs each one. Yeah, and when you're bad, he'll tell you, like he'll tell you very vocally कि छे ये क्या गंदा. Oh. Okay. Yeah, he's very vocal. If he doesn't like something, he'll, because उनकी तरफ से सोचो तो कितने उनके करोड़ों लग जाते हैं एक दिन की शूट में. बिल्कुल. तो why will he not take care? No, 100%. हाँ. I think that's main. And also, how is the vibe shooting in an all-women show? Like, you know, having so much, like, you know, there's Charmaine, there's Sonakshi, there's Aditi, Sangeeta. They're really fun to work with. I wish I had more scenes. I wish I had scenes with Sonakshi. She and I don't have scenes. Yeah.
but मतलब during the promotions I discovered what a chiller she is actually. She's really fun. Press loves her. She's very vivacious, and nothing is put on. Like she's just who she is. With Manisha ma'am, she's just quite a solid performer. And because उन पे इतना तजुर्बा है, तो वो दूसरों की बहुत मदद करती हैं क्यूज वगैरह में ना. और कभी कभी आपको शर्म आती है कि इतने एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस आपको क्यूज दे रहे हैं अच्छे से, और आप उनसे देख के कितना सीख सकते हो. तो लाइक आई लव टू वर्क मोर एंड मोर. दे आर ऑल ग्रेट, ऑल ऑफ देम गुड. So after this, where do you see your career going after Heera Mandi? I don't know. I never plan. I think it's interesting. I think अगर कोई भी किसी में भी थोड़ी सी परख होगी तो उसको समझ में आएगा. Like you said last time when we starting this interview, you said last time we met for फुकरे. अभी कोई भी जिसमें आधे पैसे का दिमाग होगा उसको समझ में आएगा कि फुकरे कितनी अलग है और ये कितनी अलग है. तो मेरे लिए ये ज़रूरी है कि किसी को रेंज दिखे, किसी को ये दिख जाए कि वो ये भी कर सकते हैं, और ऐसा लिपसिंग टाइप का गाना पूरा क्लासिकल टाइप का वो भी कर सकते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं, दोज आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी. या समवेयर डू यू एंजॉय प्लेइंग नेगेटिव ज़्यादा, और या फिर यू एंजॉय प्लेइंग रोल्स दैट आर मोर पॉजिटिव? व्हाट इज़ योर कंफर्ट स्पेस? आई डोंट वांट टू बी कंफर्टेबल ओनली. So I'm quite uncomfortable on sets because I'm very aware कि मुझे हर चीज़ में कुछ excel करना है. Like I have to do well, whether or not the script does well. कई बार आप script sign करते हैं, आपको पता नहीं होता कि बिल्कुल बेकार बन जाएगी. But still even in those things I want to, अगर मैं frame में हूँ तो I want to do a good job. You know, आपने एक लाइन कही थी एक इंटरव्यू में जहाँ पे आपने कहा था कि I never regretted जिस चीज़ों को मैंने ना बोला है. आई वुड रिग्रेटेड डूइंग समथिंग. बट क्या आपको लगता है एज एन एक्टर यू गिफ्टेड समवेयर कि आपको समझ है कि ये काम करेगा या काम नहीं करेगा, बिकॉज यू नेवर रिग्रेटेड एनी ऑफ द थिंग्स यू रिजेक्टेड? द थिंग इज दैट सम ऑफ द स्टफ आई हैव रिजेक्टेड ऑन प्रिंसिपल. ओके. मतलब कोई बहुत, अगर मेरे को गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद मुझे 2-3 ऐसे ऑफर्स आए थे कि ओह यू आर यंग एंड सेक्सी, व्हाई डोंट यू डू दिस सेक्स कॉमेडी? एंड आई वाज लाइक नो, आई डोंट वांट टू डू अ सेक्स कॉमेडी इन व्हिच आई एम सेलिंग बनानास and saying केले ले लो or something. That's not me. So those are the things I have not regretted. I'm not going to regret them even now. वो कौन करेगा? मतलब वो बात ये होती है कि उस टाइम पे कई बार आपके आसपास भी when you're new, especially if you're an outsider, आपको नहीं पता होता कौन सी मैनेजमेंट एजेंसी अच्छी है, वो लोग आपको करेक्टली गाइड करें कि नहीं, कौन सा PR सही है या अपने फ़ायदे निकाल रहे हैं लोग. तो ये जो चीज़ें हैं दे आर वेरी यू लर्न ओनली विद एक्सपीरियंस अनफॉर्चुनेटली, स्पेशली एज एन आउटसाइडर. सो दैट्स आई हैव नो रिग्रेट्स. लाइक आई थिंक आई यूज माई ब्रेन क्योंकि मुझे आसपास के सब लोग बोल रहे थे ये कर लो, इसमें बिकिनी सीन है, इसमें ये है वो है, मार्केट बन जाएगी. पर मुझे लगता है नहीं, वो बहुत अलग टाइप की मार्केट बनती और बहुत शॉर्ट लिव्ड और थोड़ा समवॉट कंफ्यूजिंग. बट जैसे आपने कहा कि यू नो मैं नहीं थी एंड आई यूज्ड माय ब्रेन्स, बट बहुत बार एज ह्यूमंस हो सकता है दैट यू नो जब आपको समझ या नॉलेज नहीं होती किसी इंडस्ट्री की, स्पेशली फॉर आउटसाइडर्स, इट्स वेरी नेचुरल कि आप अपनी मैनेजमेंट पे ट्रस्ट करो. ऐसा काफ़ी एक्टर्स के साथ हुआ है. जी जो वो ट्रस्ट करके करते हैं और फिर शायद उनको रियलाइज होता है. हाउ डिड यू हैव दैट इंस्टिंक्ट कि नो दिस? नहीं, ऐसा नहीं है. नॉट ऑल डिसीजंस आर गुड डिसीजंस. समटाइम्स आई हैव ट्रस्टेड द मैनेजमेंट एंड मेड बैड डिसीजंस आल्सो. राइट. And sometimes I've been like, guys, what the hell? Like, why did you make me do this? Or, you know, later you feel like I said, regret what you've done. क्योंकि वो तो छप गया ना हमेशा के लिए. तो वो होता है. It's a part of the process. But trust also you need to keep refining. How do you see yourself with the younger Richa? Was she more naive? Very naive. बहुत evolve हुए. हाँ, बहुत. मुझे बहुत अच्छा हुआ कि जब मुझे आसपास मेरे लोग चढ़ा रहे थे कि ओए लक्की क्या वो फिल्म है, और फिर देन यू नो द मुंबई अटैक्स हैपेंड एंड देन लाइक यू नो दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ एंड नाउ यू अराइव्ड. वो सारी बातें मैंने कभी अपने दिल में बैठने नहीं दी. एंड द काइंड ऑफ फेलियर्स आई हैड अर्ली एंड द काइंड ऑफ रिजेक्शन आई हैड कि हाँ कि कपड़े भी सिल गए पर आपको फिल्म से निकाल दिया किसी वजह से, बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स और व्हाट समथिंग डिफरेंट.
that really taught me. So I feel like because of those things, I've stayed humble, grounded. I know this is all like a play, so I don't take it. I take it seriously. Like I take my work seriously, Yeah. but I don't die for it. You'll never see like someone from my PR team calling someone and say वो आएगी तो उसको award चाहिए. वो सब नहीं होता. Right. मुझे उसमें जीरो से भी कम इंटरेस्ट है. That's why it takes me to my first question. जहाँ पे आप comments पढ़ोगे आपके इंटरव्यू के नीचे लोग यही कहते हैं कि how is she still so humble? इतने साल हो गए. I think इतना people नाम should हो be गया. humble because then it's less. Imagine मैं आऊँ यहाँ पे और मैं कंप्लेन करूँ कि कितना नॉइज़ है और मैं बोलूँ कि आपने क्या ओह गॉड कुछ अरेंजमेंट नहीं है. It's not fun for anyone, you know. Yeah. I'm not that person. That's why. Have you ever thought if not acting then what probably you would have done? I Because you could have came done. for your masters. अगर Yeah, life yeah. अलग हो जाती तो I could have been at one point I was really interested in serious journalism. Yeah. It's like serious, like Indian Express and Hindu kinds. Right. And photojournalism, that was my jam for a little bit. Or I thought I could be like in broadcast journalism with NDTV, that kind of thing I had. It was very different from this, but मुझे ये था कि उसमें बहुत अच्छा दिमाग यूज़ होगा. कभी कभी मुझे यहाँ पे ये लग रहा था कि दिमाग नहीं यूज़ हो रहा, बाकी हर चीज़ यूज़ हो जा रही है. Right. Which is why I'm very happy with producing. Yeah. Because absolutely. it gives me that full spectrum. You know, when I heard you talk about producing also, the technicalities जो आपने एक mention की थी. अब हमारे स्लेट के लिए आए थे, डोना दिल्ली में आए थे ना आप. आई थी. I remember you. हाँ, yeah. So you know you speak so technically when it feels like okay ये actor नहीं है, now it's रिचा चड्ढा the producer and एक इंटरेस्ट दिखता है. प्रोड्यूसर आप नहीं बन सकते सिर्फ you know पैसे लगाने के या कमाने के लिए. I feel like इंटरेस्ट भी होना चाहिए. हाँ, वो पैसे वाले जो लोग होते हैं वो तो फाइनेंसियर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं. Yeah. तो प्रोड्यूसर का काम होता है कि हर चीज़ को जोड़ के साथ में बनाना. As a filmmaker. Yes, as a filmmaker. Exactly why I felt like didn't you ever have an ambition that you know I want to probably put in my money or you know become an actor to see the peripherals of it. मतलब जो perks होते हैं of being an actor. जैसे glamour हो गया, पैसा हो गया, नाम शोहरत. Was that ग्लैमर ever क्या an aim? क्या क्या होता है ग्लैमर? ग्लैमर होता है बड़ी गाड़ी से परफ्यूम के गुब्बारे में निकलना. हाँ, ग्लैमर क्या होता है? स्टाइलिस्ट आती है, मेकअप वाला आता है, वो आप नाइटी पहन के घर में बैठे रहो, वो आपको तैयार कर देते हैं. दैट्स ग्लैमर. Right. Everyone can look glamorous today. Yeah. Like in fact I see some people from their Instagram and when I see them in real person एक ज़मीन आसमान का फर्क जी, नज़र आता बहुत है. होता है ऐसा. तो क्या है ग्लैमर? ग्लैमर is a tool. Right. Okay, so I don't chase that. I feel like style is inherent. Who you are, how comfortable you are. I'm in my 7th month. If I have to go out, like I'll wear something loose, but I'll make it work for me, for my body. I won't wear heels. These kind of things, you know. So I feel peripherals हम लोग enjoy कर सकते हैं. और ऐसा नहीं कि like in the first film that we did invest some money also apart from investors because there was a need. Yeah. ज़रूरत थी तो हम लोगों ने डाल दिया. तो वो सब है बट वी बिलीव्ड इन द सब्जेक्ट, वी बिलीव्ड इन द प्रोजेक्ट. तो वो ज़रूरी है. आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट, आपके बिलीफ, आपको क्या अचीव करना है उस पर भी डिपेंड करता है. नो बट लाइक यू सेड कि जब आप स्टार्टिंग में मुंबई में आए थे वो दोज फैक्टर्स जो फैसिनेटिंग थे आपके लिए या होते हैं कभी लोगों के लिए. अब आप ऐसे स्टेज पे हो गए हो सिक्योर्ड वे यू नो द इंडस्ट्री, काफ़ी साल हो गए, एक्सपीरियंस है योर प्रोड्यूसिंग. बट इनिशियली क्या होता है जब आप वो नई स्टेज में होते हो, शायद वो फैक्टर्स भी फैसिनेटिंग हो सकते हैं लोगों के लिए. वो आप नहीं वो होते हैं नो डाउट. और इनिशियली वो सबको अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर इन स्कूल एंड कॉलेज. द पीपल हु टॉक दे आर लाइक मुझे हीरो बनना है. वो वाली जो चीज़ है ना वो सबको, मुझे अपने आप को बड़े पर्दे पर देखना है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो दोज थिंग्स आर देयर. बट आई फील लाइक वो दे आर स्टार्टिंग पॉइंट. व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग यू रियलाइज कितना कुछ और है और कितनी मेहनत लगेगी. तभी तो बहुत सारे लोग मतलब चले भी जाते हैं जी आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऑफ ट्राइंग बिकॉज दे डोंट नो कि कितनी मेहनत लगती है शायद. हाँ, एंड दे आर लाइक नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा, लोग अच्छे नहीं हैं, ये नहीं है वो नहीं है. तो मुझे लगता है हर जगह ऐसा होता है. सो it's up to you how much you want to do, what you want to achieve. Like there are some things I wouldn't do even now. Like what would they be?
like I can't, like if I feel like if I find out कि कोई कुछ ऐसा बना रहा है जिसमें मुझे दिलचस्पी है, I'll definitely reach out to them. बट अगर मुझे कोई ऐसे बोले कि कोई हीरो के अराउंड कोई प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, उसमें वो चाहिए और फिर एक गाना भी हो, मैं कभी, मुझे कोई बोलेगा तो मैं बोल दूँगी कि अच्छा यू आर डूइंग दैट, प्लीज़ कंसिडर मी. उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी शायद. जी. I won't be able to go suck up to the hero and be like, oh my god, you're working on this. That's not me at all. Even like we as an audience wouldn't be able to imagine you as that, because you've Yeah. done such nice meaty characters over the years Yeah. that आज भी हम उसको याद करके and there'll be a smile on the face that character really stood out. Thank you. Yeah, that's what I want to do. Because films are forever. Yeah. Yeah. Absolutely. And lastly, before I let you go, are you satisfied with the kind of trajectory your career has had over the years? I would say I'm satisfied, but I'm not. No, actually, I would say I'm content, but I'm not satisfied. I feel like भूख अब वो, कभी भी है. हाँ, भूख होनी चाहिए. हाँ. कभी कितना कुछ आप देखते हो तो आपको लगता है कि अरे वाह ये बहुत लाइक yesterday I watched Chamkila and I thought it was so great that Daljit and Pariniti both sang and I am from Punjab. I know what Chamkila was, the phenomenon. Yeah. And तो मुझे लगा कितना अच्छा, कोई कभी कभी किसी दूसरे का काम देख के आपको एनर्जी भी मिलती है कि वो उन्होंने इतना अच्छा से परफॉर्म किया कि एक्टिंग लग नहीं रही, तो वो those things are beautiful. Yeah. Did you like it? I liked it. Yeah, that's what I'm saying. That Still yet to watch. watch it. It's nice. It's a nice film also. And ये मुझे लगता है कि जो बिटरनेस आपको दूसरों के अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं करने देती है, बिटरनेस लोगों को रोक भी देती है. बिल्कुल बिल्कुल. It stops खुद जले का भुने growth. रहते हैं और खुश नहीं रहते किसी के लिए, you know. Have you met people like that Yes. in your life? Of course. खुद के दोस्त भी होते कभी Of course होते हैं. उनसे थोड़ा आपको दूर भी होना पड़ता है. Did you cut them off early on? No, I think they cut me off. Immediately after Gangs of Wasipur, like actually the people I was living with, they started to fight with me in an unnatural way, and I realized it was time to maybe live alone. But maybe that's because you were growing. Yes, I was growing. They were not. They were also growing, but not at the same pace. Same pace. हाँ. तो वो होता है कि हम दोनों ने स्टार्ट किया था शायद सेम जगह पर when you see someone probably Yeah. go way ahead than you. But ऐसा होता है ना, अगर आप इंजीनियर हो और मैं एक्टर हूँ या मैं क्रिकेटर हूँ, एक अच्छा मैच, एक अच्छी फिल्म, उससे मेरी लाइफ बदल जाएगी. पर आप इंजीनियर हो, आपको बहुत टाइम तक स्लोली काम करना पड़ेगा. मे बी यू विल बी अ मिलियनेयर, मे बी यू मेक मोर मनी देन द एक्टर और द क्रिकेटर लॉन्ग टर्म. बट इट्स जस्ट इन दैट मोमेंट you will realize who is happy for you really. True. And who's feeling a little Uneasy. या एक डिस्कम्फर्ट अगर किसी का दिखता है तो आई फील कि हमको भी निकल लेना चाहिए. That's why there's this quote ना, जब जैसे ग्रो होते हो आपकी फ्रेंड सर्कल और छोटी जी. होती जाती है. हाँ. And I think इसकी that's वजह very ये nice. भी है कि व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल आपको पता नहीं लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं. मतलब पता चल जाता है कि मतलब इंसान मतलब के लिए आ रहा है, बट हाँ. बट सच्चा इंसान वो परख रखना ज़रूरी है आई थिंक व्हेन यू आर हाँ, बहुत. Thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you, I Anna. wish you all the best for Hira Mandi and so much coming in the future. And we're waiting for little babies. Baby only one. Baby. Thank you so much. Wish you all the very best. Hi guys, this is Richa Chadda. If you like this, please like, share and subscribe to Instant Bollywood.